Hello everyone, now welcome back to another video lecture. So today what we'll be covering is that how consent, that if consent is given, how the offender will be exempted. So basically we are covering it within the chapter of general exceptions. Consent है ना, तो वो ऑफेंस हो भी गया है तो भी पर्सन को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा. So we'll be seeing section 87 to 91 which deals with the law of consent. Section 87 to 91. Now, for example, if you can see that if a woman is there and the woman has voluntarily given consent for sexual relation to a man. So if she has voluntarily consented, then if there is a charge of rape against the man, he will not be liable for rape as the consent was there. But वही अगर consent नहीं होता, then it would have amounted to rape. So I hope you can understand this fact. Now let's move on and see कि consent defined कहाँ है. So we are covering 87 to 91, but after all consent कहाँ defined है? Consent is not defined, my friends. Consent is not defined. Section 90 talks about consent, but it is not telling you that what will be consent. Rather, it is in a negative sense and it is telling you what all things cannot amount to consent. तो वो ये नहीं बता रहा है कि कंसेंट का मतलब क्या होगा. इट इज़ नॉट डिफाइनिंग कंसेंट, लेकिन वो ये बता रहा है कि किन किन परिस्थितियों में कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी. ओके, सो हियर इट इज़ रिटन सेक्शन 90 इज वर्डेड इन अ नेगेटिव लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइनिंग बट रादर इट इज़ टेलिंग कि कौन कौन से सिचुएशन में कंसेंट विल बी नो कंसेंट. ओके, सो the definition of consent has been given by the Honorable Supreme Court in Kenny Rajan versus State of Kerala. Let's go through the definition and see what consent is. Consent is an act of reason coupled with deliberation. Okay. Consent is that when you can deliberate upon an issue. जब आप सोच समझ सकते हो, सोच समझकर विचार कर सकते हो, that is consent. So you are reasoning out things, you are understanding, okay, so if I do this, what will be the consequence? And then also if you agree, that means you are giving consent. So it is an active will in the mind of the person which gives the consent. Consent is an expression of desire ki okay, I want to do this. Even after knowing the significance, even after knowing what all can be the consequence, what will be the significance of the act. And also one main thing is that you should have opportunity to choose between assent and resistance. Supposingly मैं आपको बोलती हूँ you are my friend और मैं आपको बोलती हूँ कि I don't know anything, आज आपको पार्टी में चलना ही पड़ेगा मेरे साथ. So I say that you have to come with me to the party. यहाँ पे मैं compulsorily बोल रही हूँ. I have not given you an option कि आप आओ या ना आओ. So here it cannot be called consent. अगर आप आते भी हो तो it cannot be called consent. Consent is only when you have been given an opportunity to choose between yes or no, to deliberate and choose between yes or no. I hope that is fine. अब देखिए consent क्या नहीं होगा ये section 90 बताता है. Section 90 is telling you that if a person gives consent under fear of injury या फिर misconception of fact में दे देता है, तो fear of injury में दे रहा है या फिर misconception of fact में दे रहा है या फिर एक बच्चा है जो 12 years के एज के नीचे है, अगर वो consent देता भी है तो भी उसकी consent will not amount to valid consent. Or if consent has been given by a person who is unsound, who is suffering from a defect of mind or who is intoxicated, and because of the unsoundness and intoxication he is not able to understand that the nature and consequence of the thing to which he has consented. Okay, so chalo I'll explain
to you with an example. Suppose करो कि there is a woman, okay, so there is a woman और उसने voluntarily drugs लिए हैं, she has voluntarily taken drugs or she is intoxicated, and the man asks her for sexual intercourse. बाद में ये लड़की ना उस पर चार्ज लगा रही है रेप का. So the man is saying that I am not liable for rape. I asked this woman for consent and she agreed to the act of sexual intercourse, and therefore I am having a consent and I am not liable. But question is that whether the consent given by this woman was a valid consent or not. Because the man is telling, I am not liable, she has consented. So the question arises that whether the consent according to section 90 is a valid consent or not. So the lady is intoxicated, right? She is intoxicated. और lady बोलती है that I was due to intoxication unable to understand the nature to which I am consenting. Consequence मैं नहीं समझ पा रही थी, तो इसीलिए वैलिड कंसेंट नहीं है एंड द मैन विल बी लायबल फॉर रेप. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे कि मैन की तो कोई गलती नहीं थी ना, उसने तो पूछा, भले वो इंटॉक्सिकेटेड थी बट स्टिल ही आस्क्ड हर, और फिर वो अग्री कर जाती है, तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड इफ यू मेक द मैन लायबल. बट यहाँ पे एक बात सोचो, इफ द लेडी इज इंटॉक्सिकेटेड और मैन ये डिफेंस लेता है कि कंसेंट तो था ना, भले वो इंटॉक्सिकेशन में था बट कंसेंट तो था, तभी तो मैंने ये एक्ट किया. बट द कंसेंट इज नॉट प्रॉपर कंसेंट, बिकॉज आप उस लेडी की डिमीनर से, उसके स्टेट ऑफ माइंड से, उसके बिहेवियर से आप ये पता लगा तो सकते थे ना कि वो उसने ड्रग्स लिया है कि नहीं, वो इंटॉक्सिकेटेड है कि नहीं. तो यहाँ पे it is the defense at all is not tenable, है ना? This is a frivolous defense and this won't be allowed. So I hope ये समझ में आ गया होगा आपको. Now let's read section 90. So section 90 अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? Consent known to be given under fear or misconception. So before beginning with section 90, I must tell you that section 90 will contain 3 paras. पहली पैरा में आइए पढ़ते हैं. A consent is not such a consent. मतलब consent दिया भी है ना, it will not be considered to be a valid consent if the consent is given by a person under fear of injury or under misconception of fact. Okay. So if this woman, she has consented under fear of injury or misconception of fact, then though she has consented, her consent will not be a valid consent. It will not be considered to be a consent. Plus, if the person doing the act, that is the accused, knows, so the accused must know or has reason to believe, so the accused must know or he must have reason to believe that the woman, that this lady was giving the consent in consequence of fear or misconception. तो बस fear और misconception हो यही ज़रूरी नहीं है. Accused को पता भी होना चाहिए कि the lady is giving the consent in consequence of fear और misconception. अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. सो सपोजिंगली 375 रेप तो सबने पढ़ा ही है. तो 375 क्लॉज 2 अगर आप चेक करोगे तो वहां पे भी है कि द एक्ट विल अमाउंट टू रेप इफ इट इज डन विदाउट हर कंसेंट.
For example, suppose a lady got married. So this lady has got married and she belongs to a village. तो आपने देखा ही होगा विलेज में वो उनकी जो पल्लू रहते हैं वो आगे तक रहते हैं, दे कैन नॉट नॉर्मली सी द ग्रूम. सो उसने नहीं देखा कि उसका पति कौन है. एंड henceforth इवनिंग में when she was sitting in a room, a guy goes into the room and behaves as if he is the husband. And she is believing, because she has not seen the groom, she is believing that he is only her husband, and she agrees to the act of sexual intercourse with him. While the other person, that guy, he is clearly knowing that okay, I'm not her husband, and the woman is believing that I am her husband, and therefore she is agreeing to the act of sexual intercourse. ओके तो यहाँ पे मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है लेडी को कि वो हस्बैंड है, और इसको पता भी कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में वो कंसेंट दे रही है. हेंस ही विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप. ओके तो यहाँ पे ना उसको नॉलेज होना जरूरी है या फिर रीजन टू बिलीव होना जरूरी है दैट द कंसेंट इज बीइंग गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ मिसकंसेप्शन. सो व्हाट हैपेंस दैट देयर इज अ सिंगिंग मास्टर. ही टेल्स द गर्ल दैट I have a method to improve your voice. You know, you can sing better. I have a method. The girl is very small. She is not understanding. And what the master did, on the pretext of improving her voice, the master had sexual intercourse with the girl. तो यहाँ पर गर्ल ने कंसेंट दिया था to the master that okay, you can touch me. But was the consent given to rape? No. The girl gave the consent to improve her voice. उसने कंसेंट दिया कि मेरी आवाज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो, एंड henceforth if you are doing something with my organs, you can do that. So यहाँ पे उसने गलत तरीके से had sexual intercourse, so it will amount to rape. As the consent was given by the girl, but consent was given under misconception of fact that he is going to improve her voice, and the master knew that the girl is giving the consent on misconception, and hence he'll be liable of rape. अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. This is a very interesting case of Ganesh Dule. So what happened is that, so there was a snake charmer, right? So snake charmer एक डिसीज को बोलता है कि तुम ना इस सांप से खुद को कटवा लो, एंड यू नो आई हैव मैजिकल पावर्स, आई कैन क्योर यू, तो तुम कटवा लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें. सो यहाँ पर भी वो जो पर्सन है, जो एडल्ट है, ही इज गिविंग द कंसेंट कि ओके लेट द स्नेक बाइट मी. बाद में मान लो वो मर जाता है, बट स्टिल ही इज गिविंग द कंसेंट कि ओके लेट द स्नेक बाइट मी. बट क्या ये कंसेंट मिसकंसेप्शन में नहीं था? मिसकंसेप्शन में ही था ना, बिकॉज ही इज थिंकिंग कि ओके द स्नेक चार्मर हैज गॉट सम पावर्स एंड ही विल डेफिनेटली ब्रिंग मी बैक टू लाइफ. So here the consent by the adult was under misconception of fact that the snake charmer has charms to cure the snake bite, while snake charmer को पता थी बात that I have got no magical powers. So यहाँ पर the snake charmer will be liable for the murder of the adult. I hope ये समझ में आ गया होगा. Now let's understand another case of Zakir Ali versus State of Assam. It was proved beyond doubt that the accused had sexual intercourse with the victim on the false promise of marriage. So we'll see another case also, लेकिन आप यहाँ पे facts notice करो. यहाँ पे क्या है कि accused sexual intercourse तो कर लेता है, ये बोलकर उस lady के साथ
that I'll marry you. And the woman is agreeing. Woman is giving the consent for sexual intercourse. But only she has a misconception that, okay, he is going to marry me ultimately. But that is not the case, because he always gave false promise. He never intended to marry the girl. So the Guwahati High Court held that submissions of the body by a woman was under misconception, कि वो उससे शादी कर लेगा, जबकि उस accused को पता भी था that he is giving false promise. He only wants to have sexual intercourse. He has no intention of marrying the girl. अब let's look into another case, Dashrath Pashwan versus State of Bihar. So इसमें भी facts कुछ similar ही हैं. So what happened, like two person, a man and a woman, were staying together and they were studying, basically in a live-in relationship. So they were in a sexual relationship for 2 to 3 years. There was a promise to marry by the man. But later, after the study completed, he changed his mind. He changed his phone number. So ultimately, the lady filed a case against him under 376 for the offense of rape. So what is the test here? Is the test that he is refusing today to marry me? So you must understand, he is refusing today is not the test. आज वो पलट गया है, वो शादी नहीं कर रहा है, ये टेस्ट नहीं है. टेस्ट क्या है? टेस्ट ये है कि जिस वक्त वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट मांग रहा था, whether at that time he intended to marry her genuinely or not. So the test is, did he intend to marry her genuinely when he made the promise? If yes, then no rape. But if he did not intend to marry her, but he just said so that the lady can agree for sexual intercourse with him. So यहाँ पर, since at starting he genuinely यहाँ पे क्या होगा? स्टार्टिंग में ही वो जेन्युइन इंटेंशन नहीं थी उसकी, तो यहाँ पे वो रेप हो जाएगा. बट यू मस्ट डिस्टिंग्विश दिस केस फ्रॉम अनदर सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट्स. सपोजिंगली कि वो उसकी इंटेंशन तो थी मैरी करने की, बट मे बी ड्यू टू फैमिली सिचुएशंस और मे बी ड्यू टू अनदर सर्कमस्टांसेस लेटर वो अपनी प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर पाता है. सो व्हेन ही प्रॉमिस्ड, देयर वाज अ जेन्युइन प्रॉमिस फ्रॉम हिज साइड, but later due to some circumstances he is not able to do so. तो यहाँ पर वो रेप को माउंट नहीं करेगा, बट ऑब्वियसली ब्रीच तो हो रहा है, शादी तो नहीं हो रही है. So he will not be liable for the offense of rape under criminal law, but definitely he can be liable for breach of contract under the civil law. I hope ये clear है. Let's read what Dilip Singh alias Dilip Kumar versus State of Bihar is telling. If the accused has made a genuine promise and he commits a breach, then there will be no criminal liability. However, he will be liable for breach of contract. However, if the promise was fake, false since the inception, then he commits the breach. So he will be liable both under the contract for breach of promise as well as under the criminal law for rape. अब सेक्शन 90 का पैरा 2 क्या बोलता है? सेक्शन 90 पैरा 1 we have seen it was talking about consent given under fear of injury or misconception of fact. Para 2 is telling that a consent of insane person, if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or from intoxication was unable to understand the nature and consequence. तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ सेक्शन 90 पैरा 3 it is telling that consent of a child unless the contrary appears from the context. So was it, if the consent is given by a person who is under 12 years of age, so the consent by a child who is under 12 years of age will not amount to a valid consent. And here the words unless the contrary appears,
ये बता रहा है कि इफ देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन विच इज गिविंग अ डिफरेंट एज, लाइक सेक्शन 90 में 12 साल बता रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा सेक्शन है जो कि कंसेंट की जो एज है वो स्टेट कर रहा है, बट वो 12 साल के अलावा कोई अदर एज स्पेसिफाई कर रहा है, देन यू हैव टू फॉलो दैट एज, राइट? सो इफ अ पर्टिकुलर सेक्शन गिव्स अ डिफरेंट एज, then you have to follow that age. Otherwise, in every other case, the consent of a child will be considered to be a child under 12 years. तो 12 साल के नीचे के बच्चे के consent will not amount to a valid consent. I hope ये आपको समझ में आ चुका होगा. Now let's move forward and see कि section 92 क्या बोलता है. सेक्शन 92 देखते हैं. अब देखो सेक्शन 92 रीड करते हैं. इट इज टेलिंग यू एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट. सो इट इज टेलिंग, देखो आपको ना ये सारे ही सिचुएशंस अच्छे से समझने पड़ेंगे. सेक्शन 19 इज स्टेटिंग अबाउट विदाउट कंसेंट, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो डीलिंग विद कंसेंट, बट इट डील्स विद अ सिचुएशन ऑफ विदाउट कंसेंट, कि जहाँ पे कंसेंट नहीं दिया जा रहा है तो भी वो कब एक्सेप्शन को अमाउंट कर जाएगा. ओके, तो यहां पे लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for the person to signify consent, or the person is incapable of giving consent and there are no guardians or other persons in lawful charge of him from which it is possible to obtain the consent. So ये पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? सेक्शन 19 इज डीलिंग विद एन इमरजेंसी सिचुएशन. 92 जो है आपका वो डील कर रहा है, कवर्स इमरजेंसी सिचुएशंस विच आर नॉट कवर्ड बाय अदर सेक्शंस. सो यहाँ पे कंसेंट लेना इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल. कंसेंट लेना इज इम्पॉसिबल बिकॉज द सिचुएशन में बी सो. और consent lena is possible but the person is not capable of giving the consent. For example, the person is a minor or the person is under 12 years of age, या फिर person is under coma, the person is unsound and there are no guardian जिससे consent लिया जा सके. Okay, so here it is not possible to get the consent. So if the person is not able to get the consent but still he is doing the act without consent only, he is doing the act, he is doing it in good faith. good faith में कर रहा है कुछ benefit पहुंचाने के लिए victim को. तो अगर victim को benefit पहुंचाने के लिए good faith में कर रहा है, बिना consent के भी किया है, तो अगर उसे कोई भी harm हो भी जाता है फिर भी the exception will be given to the accused under section 92 because it was an emergency situation और उसने good faith में किया है for the benefit of that person. I hope it is clear. अब now let's move forward. अब हम देखते हैं इसमें बहुत सारे provisos भी हैं. So the proviso is providing the exceptions कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हो. मतलब आप उस benefit के लिए भी, बेनिफिट दिलाने के लिए भी आप क्या नहीं कर सकते हो. सो द फर्स्ट प्रोवाइजो इज टेलिंग यू दैट दिस एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 92 शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ. समझ रहे हो? बिकॉज इफ यू आर इंटेंडिंग टू किल अ पर्सन, आपकी विल या डिजायर है टू किल अ पर्सन, तो ये जस्टिफाई नहीं करेगी ना फिर इस बात को that you are doing it for the benefit of that person, because आपको intention है, आप मारना चाहते हो.
सो इंटेंशन नहीं होनी चाहिए आपकी उस पर्सन को मारने की, डेथ कॉज करने की, या फिर अटेम्प्ट, इंटेंशनली आप अटेम्प्ट भी नहीं करने चाहिए डेथ कॉज करने का. ओके, सो इंटेंशन है आपकी तो ये सेक्शन 92 विल नेवर अप्लाई. You won't be given the benefit of the exception. Next thing is that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death. अब समझो first proviso और second proviso में what is the difference? In the first proviso you are intending the death of that person. आप चाहते हो कि वो मर जाए and therefore you are doing the act with so much certainty that he dies. तुम एम करके उसको मार रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो. लेकिन जहां पे आप उसको मारना नहीं चाहते, यू डोंट हैव द इंटेंशन बट यू हैव द नॉलेज कि मेरे इस एक्ट से ही कैन डाई, बट यू आर नॉट विलिंग टू कॉज द डेथ. मेरे इस एक्ट से ही कैन डाई बट स्टिल यू आर गोइंग फॉरवर्ड विद द एक्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रिवेंट द डेथ ऑफ दैट पर्सन, or you want to prevent the person from another grievous hurt or a grievous disease or a grievous infirmity. तो आपको पता ही है कि एक्ट से डेथ हो सकती है. स्टिल सिंस यू हैव अ better motive of preventing the death, grievous hurt, grievous disease and grievous infirmity, hence if you go forward with the act you will be exempted. ये हम आगे हम illustration से समझेंगे, but let's read all the provisos first. The third proviso is saying that this exception shall not extend to the voluntary causing of hurt. अब आगे दो provisos में हमने डेथ का देखा था. अब यहाँ पे voluntarily आप उसको hurt cause कर रहे हो या फिर attempt कर रहे हो कि hurt हो जाए, still you will get the defense. Why? Because you have a greater purpose of preventing the person from a death or from another hurt. तो दूसरे किसी हर्ट से बचाने के लिए या डेथ वाली सिचुएशन से बचाने के लिए if you are voluntarily causing the hurt or you are attempting also, then still you will get the defense. Voluntarily ना section 39 में defined है. So voluntarily means you are doing the act with an intention or with the knowledge or with a reason to believe of causing hurt, but still you are getting the defense. Fourthly, it is saying that this exception shall not extend to the abatement of any offense, the committing of which it would not extend. So what it is telling? It is telling that supposingly you are this person, you abet this person to do offense. So if the actual committer is not getting the defense of section 92, अगर इससे defense नहीं मिल रहा, so the person abetting the offense, abetter, उसे भी section 92 का defense नहीं मिलेगा. I hope this is clear. ये और क्लियर हो जाएगा आगे इलस्ट्रेशन से. नाउ लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है? इलस्ट्रेशन इज टेलिंग यू दैट जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स. अब ये देखो कितनी इमरजेंट सिचुएशन है. इट इज़ अ वेरी एमिनेंट सिचुएशन. ही इज थ्रोन अप फ्रॉम द हॉर्स, ही इज लाइंग इनसेंसिबली एंड अ डॉक्टर, अ सर्जन इज देयर. ऑब्वियसली द डॉक्टर फाइंड्स दैट जेड रिक्वायर्स टू बी ट्रीपैंड. So good faith में ना surgeon, since he knows he is a medical person, so he in good faith believes that Z requires to be trepanned. ये Z की benefit के लिए सोच रहा है, नहीं तो death भी हो सकती है Z की. तो what he does is he performs the trepan, and when Z recovers his power of judging for himself. So here A has committed no offense because the person Z, when he was thrown from the horse, he was insensible.
So he was not in a position to give the consent. It was impossible to obtain the consent. And there was no other person, no guardian or nobody else from whom consent could have been obtained. Plus, in good faith, the doctor assumed that treatment needs to be performed. So good faith was also there. Okay, and it was performed for the benefit of Z. So since it was performed for the benefit, it was done in good faith. So even though the consent has not been taken, still he will not be liable for the offense and he has committed no offense. Let's see another example. In another example, we can see that Z is carried off by a tiger. है ना? फिर टाइगर ने उसको अपनी जबड़े के बीच में लेके जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे ए देखता है ये चीज को. अब उसके पास क्या है, सिचुएशन क्या है, इतनी एमिनेंट सिचुएशन, ही कैन नॉट लेट द टाइगर गो अवे विद द पर्सन. सो व्हाट ही डज, ही शूट्स एट द टाइगर. सो ही इज शूटिंग एट द टाइगर. इज ही इंटेंडिंग टू किल जेड? नो, ये इंटेंशन नहीं है उसको मारने की, याद रखना. बिकॉज इंटेंशन होती, वी हैव सीन इन द एक्सेप्शंस, प्रोवाइजो 1, इंटेंशन में यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट. सो यहाँ पे इंटेंशन ही नहीं है. इंटेंशन थोड़ी ना कि उस इंसान को गोली लग जाए, बट स्टिल वो टाइगर की तरफ शूट तो कर रहा है. बट कितना ही प्रिसाइज हो जाएगा वो. मान लो वो शूट कर रहा है, टाइगर को ना लग के इसको पैर में लग जाती है, कहीं लग जाती है. सो ही कैन नॉट बी लायबल. You cannot make him liable. Why? Because he did it in good faith to protect the person from the tiger. For Zed's benefit, he did it. So even though he gives Zed a mortal wound, still he will not be liable for the offense. Now let's see another illustration. आप ये दोनों illustration पढ़ सकते हो. So आप ये पढ़ लेना illustration. अब आप देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है. यहाँ पे बोल रहा है कि बेनिफिट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव स्टेटेड टू यू कि एक्ट जो कर रहा है अक्यूज, इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, बेनिफिट ऑफ द विक्टिम. सो बेनिफिट का मतलब यहाँ पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं है. अंडरस्टैंड? पैसों से कोई लेना देना नहीं है, तो पिक्यूनरी बेनिफिट की बात नहीं कर रहा है. यहाँ पे बेनिफिट की बात कर रहा है, बेनिफिट टू द बॉडी, बेनिफिट टू द प्रॉपर्टी, तो ये सब की बात कर रहा है. सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पिक्यूनरी बेनिफिट हियर. आई एम क्लियर? एंड नाइदर, आगे वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 88 और 89, उसमें भी जो बेनिफिट वर्ड आएगा, बट वहां भी बेनिफिट इज नॉट कवरिंग पेक्यूनरी बेनिफिट्स. अब देखो सेक्शन 87, 88 और 89, इन तीनों में ही कंसेंट इज देयर. क्लियर होने इस बात से. अभी हमने सेक्शन 92 पढ़ा. सेक्शन 92 इज डीलिंग विद अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो कंसेंट. बट ये तीनों सेक्शंस है ना, सेक्शन 87, 88, 89, इट इज डीलिंग विद अ सिचुएशन वेयर कंसेंट इज देयर. सो इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ वॉलेंटाइन नॉन-फिट इंजूरिया. व्हाट इज वॉलेंटाइन नॉन-फिट इंजूरिया? Voluntary non-fit injuria basically means if a person is willing, he is agreeing, then no injury is done to that person even if some harm is caused to them. And the basis of this maxim is basically the law presumes that a person, you, me, anybody, we are the best judge of our interest. Okay? हम बेस्ट जज हैं अपने इंटरेस्ट के. हमें पता है व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर अस. सो इफ वी आर ऑफ साउंड माइंड, सो अगर हम साउंड माइंड के हैं, मेजर हैं, तो हम थोड़ा मोड़ा रिस्क उठा सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर, है ना. सो इफ अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड, मेजर, तो वो थोड़ा मोड़ा रिस्क उठा सकता है, बिकॉज अ पर्सन इज बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट. Now let's study. ये क्या लिखा है? Rationale behind this maxim is a person who is of proper age and sound mind is the best judge of his interest, and hence the law considers it equitable to allow him to take the risk of his own harm. Okay.
So every man, you agree to this thing or not, that every man is free to inflict any suffering or damage he chooses on his own person or property. And if instead of doing it himself, he consents that with some other person that you can cause me some harm, so that person will also be protected. So यहाँ पर this section does not permit a man to give his consent to anything intended or known to be likely to cause death or grievous hurt. मतलब यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हार्म उठाने दे रहा है. He cannot assume such harm जो कि रिस्क कॉज कर दे उसकी ओन लाइफ को, उसकी डेथ कॉज कर सकती है, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकती है. वाई? बिकॉज द लॉ अज्यूम्स दैट इवन तो वो आपकी लाइफ है, बट स्टेट के लिए ह्यूमन लाइफ इज सेक्रेड, बिकॉज फॉर अ स्टेट ह्यूमन लाइफ इज सेक्रेड फॉर द सोसाइटी. अब देखो हम सेक्शन 87 पढ़ते हैं, उसमें क्या बोल रहा है. लेकिन हाँ, जो मैंने बताया ना कि अपनी ओन लाइफ को हार्म उठाने नहीं अलाउ कर सकता है, बट स्टिल इट इज़ अलाउड इन सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे आपको एक बड़े हार्म या फिर डेथ, ग्रीवियस हर्ट या ग्रीवियस डिजीज़ वाले सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना. मान लो आपको कोई कैंसर है, तो दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ ग्रीवियस डिजीज़, तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी डेडली ऑपरेशन, बट इट विल बी अलाउड, है ना. बट जनरल सिचुएशन में यू वोंट बी अलाउड टू टेक रिस्क. ओके, अब ये देखो 87 क्या बोलता है. 87 इज टेलिंग नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट. ओके, let me just wait, can you just wait for a second, I just need to do something, wait. So before moving any further, first we'll see the graph, right? तो 87 के आप कुछ points देखो इसमें. What 87 is telling that इसमें एक victim होगा above 18 years of age, and the victim in good faith he will give his consent. So if there is a above 18 years person in good faith, he is giving the consent. So जो accused का act होगा will be exempted, but obviously there are 4 restrictions. That the accused cannot intentionally cause death, ये पहला restriction है, or the accused cannot intentionally cause grievous hurt to the victim. तो अगर accused ने intentionally किया है ना, then he'll still be liable. And the second situation is the accused should not have a knowledge of likelihood that his act will cause death. और चौथी restriction है that the accused will not have a knowledge of likelihood, उसे पता नहीं होना चाहिए that मेरी ये जो act है ना इससे grievous hurt cause हो जाएगा. So ना ही उसे intentionally death या grievous hurt cause करना है, और ना ही उसके पास नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द लाइकलीहुड दैट हिज एक्ट विल कॉज द डेथ और ग्रीवियस हर्ट. सो यहाँ पे तो आपने देखा है ना, डेथ और ग्रीवियस हर्ट के लिए तो कोई एक्सेप्शन नहीं है. सो इनके अलावा कोई अदर हार्म है, सो इफ देयर इज एनी अदर हार्म अपार्ट फ्रॉम डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो ही सेक्शन 97 में यू विल गेट द बेनिफिट. ऑब्वियसली 87, 88 एंड 89 ये कंसेंट की बात करता है. कंसेंट हमने सेक्शन 90 में भी पढ़ा था कि कंसेंट होती है जब पर्सन 12 इयर्स और उससे बड़ा हो तो उसकी कंसेंट वैलिड कंसेंट होती है. बट देयर इटसेल्फ आई टोल्ड यू दैट द वर्ड्स यूज आर अनलेस कॉन्ट्ररी, unless contrary is written in some other section. So यहाँ पे आप देख रहे हो contrary लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 साल ना देख के 18 साल दी हुई है. So what you will have to follow, 12 साल जो सेक्शन 90 में लिखा है या 18 साल जो ये सेक्शन 87 में लिखा है. तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 90 में खुद ही लिख दिया है unless contrary appears, तो यहाँ पे contrary appear कर रहा है, तो यहाँ पे एज आप 18 ही मानकर चलोगे, है ना. I hope this is clear. अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं
अब हम देखते हैं कि सेक्शन क्या बोलता है हमारा, सेक्शन पढ़ लेते हैं अब। देखो सेक्शन 87 इज सेइंग नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड, कि मैंने आपको बताया कि इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर, मतलब नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए कि उसके एक्ट से डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी कॉज्ड। इन दोनों सिचुएशंस में बेनिफिट 87 का विल नॉट बी गिवन। आगे बढ़ते हैं। सो नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, इनको छोड़कर, है ना, इन चीजों को छोड़कर नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज। एनी हार्म का मतलब है कोई अदर हार्म, डेथ ग्रीवियस हर्ट के अलावा कोई अदर हार्म, which it may cause or be intended by the doer to cause to any person मतलब यहां विक्टिम की बात कर रहा है। अगर विक्टिम अबव 18 years of age है और उसने कंसेंट दी है, and here the victim का consent who is above 18 years of age can be expressed or can be implied. So if the victim who is above 18 years of age has expressly or impliedly consented to suffer the harm, तो फिर उस victim को कोई भी harm हो जाता है which obviously should not be intentional या knowledge death या grievous hurt वाली नहीं होनी चाहिए, then the accused in that case will be protected. I hope ये clear है. Generally what happens, no, this section is used in the case of sports. So if there is a lawful sports, for example if you are going for fencing or you are going for boxing, तो अगर कोई भी ऐसा lawful sports है ना, तो वहाँ पर ये दिया जाता है, यहाँ पर वो अप्लाई होता है and the benefit of section 87 is given. But you must remember that it should not be unlawfully done. For example if you are going for boxing, तो बॉक्सिंग करो, अगर कोई हार्म हो जाती है तो इम्प्लाइड है ना कि द पर्सन जिसको हार्म हुई है उसने कंसेंट दिया है कि ओके आई अग्री फॉर सम रीजनेबल अमाउंट ऑफ हार्म टू मी। लेकिन ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब बॉक्सिंग इज डन इन अ प्रॉपर वे। सो अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो बिना ग्लव्स पहने हुए, ओपन फिस्ट से कर रहे हो बॉक्सिंग, या फिर आप डुअल कर रहे हो लेकिन पॉइजनस स्वॉर्ड से कर रहे हो, या फिर बॉक्सिंग में रूल होती है डोंट हैव टू हिट बिलो द वेस्ट, तो आप वहां पे हिट कर रहे हो। आप यू आर अ क्रिकेटर बट यू आर नॉट वेयरिंग द प्रॉपर क्रिकेट गियर, तो यहां पर अगर जहां पे प्रॉपरली यू आर नॉट कंडक्टिंग योर स्पोर्ट्स और तब वहां पे कोई हार्म हो जाती है, देन द बेनिफिट विल नॉट बी गिवन, है ना। तो आपको लॉफुली करना है तभी जाके ये बेनिफिट मिलेगा। ये क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ए एंड जेड है ना, ये अग्री करते हैं कि चलो आज फेंसिंग का गेम खेलते हैं। दिस अग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट, तो यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइड कंसेंट है ना कि हाँ वी आर गिविंग कंसेंट कि फेंसिंग के दौरान कोई हार्म होगा तो विल सफर दैट हार्म। तो अगर कोई फाउल प्ले नहीं है, मतलब कोई गलत तरीके से नहीं किया है, गुड फेथ है ना, कोई फाउल प्ले नहीं है, इट इज नॉट डन इलीगली, तो अगर फिर भी ए को चोट लग जाती है, ए ने जेड को हर्ट कर दिया, सॉरी जेड को चोट लग जाती है, तो यहाँ ए माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। नाउ वील कम टू सेक्शन 87। वही वापस से लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन कवर्स इंजुरीज विच रिजल्ट whilst engaging in games and sports, and it proceeds from the maxim voluntae non fit injuria, that is he who consents cannot complain. However, a person is not permitted to give his consent to anything which is likely to cause his own death या grievous hurt. पहले बताया मैंने, इसके लिए अलाउड नहीं है, इसको छोड़ के कोई अदर हार्म है उसके लिए आप कंसेंट दे सकते हो। It justifies any harm short of grievous hurt, उससे कम। अब आ जाते हैं सेक्शन 88 पे।
देखो सेक्शन 88 क्या बोलता है, 88 पे जाने से पहले भी इसका टेबल देख लेते हैं एक बार, ग्राफ से इसे समझ लेते हैं। तो सेक्शन 88 में भी कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई हार्म हो रहा है, बट द हार्म इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम, और जो अक्यूज्ड है ही इज डूइंग इट इन गुड फेथ। और यहां पे विक्टिम ने खुद ही कंसेंट दिया है, और यू हैव टू रिमेंबर हियर 87 की तरह in section 88 the age has not been fixed, like in section 87 the age was specifically provided there कि it should be 18 years, but in section 88 no age has been fixed, so we'll refer to section 90, and section 90 is fixing the age as 12 years. So अगर victim 12 years या उससे बड़ा है, so victim has given the consent, and if he is smaller then the guardian has given the consent. So यहाँ पे consent है victim का. Then also here the accused will be excused because he has done it in benefit, good faith, and he has obtained the consent of the victim itself. है ना? और एज आप सेक्शन 90 से लोगे, बट हियर ऑल्सो वन एक्सेप्शन इज देयर. देखो सेक्शन 87 में देयर वर 4 एक्सेप्शंस, बट 88 में देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन कि अगर आपने कंसेंट ले भी लिया है फिर भी आपकी इंटेंशनल कॉज नहीं कर सकते हो डेथ. मतलब इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ में डिफेंस विल नॉट बी गिवन, बिकॉज इफ यू आर इंटेंडिंग, यू आर डिजायरिंग, यू आर विलिंग, आप चाहते हो कि किसी की डेथ हो जाए और इस तरीके से आप एक्ट कर रहे हो, देन दिस थिंग इटसेल्फ निगेट्स द प्रेजेंस ऑफ गुड फेथ. तो इसीलिए एक्सेप्शन है ना. अब इसको सेक्शन से समझ लेते हैं. तो वो सेक्शन क्या बोल रहा है, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ. मतलब अगर इंटेंशन है तो यू विल बी लायबल. तो इसको छोड़कर बाकी कोई और चीज़ है, इंटेंशन टू कॉज डेथ को छोड़कर बाकी कोई और चीज़ है तो वो ऑफेंस नहीं होगी. नथिंग विच इज एन ऑफेंस. अगर वो चीज़ हार्म कॉज कर देती है विच इट मे कॉज, और इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, और नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन. तो ये विक्टिम की बेनिफिट के लिए क्या जा रहा है, गुड फेथ में क्या जा रहा है, और विक्टिम ने खुद ही कंसेंट दिया है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली टू सफर दैट हार्म, एंड हेंस द अक्यूज्ड विल बी एक्सक्यूज्ड. अब इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं. देखो इसमें क्या है, एक सर्जन है, उसको पता है कि ये जो ऑपरेशन में करूंगा ना, इस ऑपरेशन से डेथ ऑफ जेड कैन बी कॉज्ड. he is understanding that this is a very very serious operation and it might happen that Z may die because of this operation, but why he is still doing the operation? Because Z suffers from a painful, he is having some pain, severe pain he is having, and to cure that pain, है ना, तो इस पेन को क्योर करना है, Z के पेन को, तो ऑब्वियसली ये सर्जन जो ऑपरेशन कर रहा है वो जेड के बेनिफिट के लिए कर रहा है, एंड ही इज नॉट इंटेंडिंग, क्योंकि इंटेंशन होता तो यू विल बी लायबल फॉर द डेथ. सो ही इज नॉट इंटेंडिंग टू कॉज दैट डेथ. वो ये नहीं चाहता है कि जेड मर जाए, एंड ऑब्वियसली ही इज डूइंग इट इन गुड फेथ फॉर हिज बेनिफिट, ताकि उसको उसके पेन से रिलीफ मिले. सो जेड, इफ जेड परफॉर्म्स ऑपरेशन, तो यहाँ पे कोई हार्म कॉज भी हो जाता है या फिर वो मर भी जाता है, सो हियर नो offense will be said to have been committed. So what is happening? So basically this section is protecting the surgeons or basically all the medical persons. So उनको protect कर रहा है surgeons और surgical operations वगैरह को, है ना. तो ये उनके लिए बना है. Now let's move forward. अब देखो हम सेक्शन 89 पे आ जाते हैं. 89 पे आने से पहले भी हम इनका ये ग्राफ देख लेते हैं. अब देखो 88 में भी बेनिफिट था, 89 में भी बेनिफिट के लिए कर रहे हो.
88 में भी गुड फेथ था, यहाँ पे भी गुड फेथ है। 88 में कंसेंट था, यहाँ पे भी कंसेंट है, लेकिन 88 में द कंसेंट वाज द ऑफ द विक्टिम इटसेल्फ, वहाँ पे विक्टिम खुद कंसेंट दे रहा था। बट 89 में कंसेंट इज गिवन बाय द गार्जियन और बाय एनी पर्सन इन लॉफुल चार्ज, तो यहाँ विक्टिम नहीं दे रहा। The consent is given by guardian or any person in lawful charge. Why? Because obviously जो person है he is under 12 years. So under 12 years है तो उसका consent will not be valid consent according to section 90. तो इसीलिए यहाँ पे victim वही है, लेकिन चूंकि उसका consent valid consent नहीं होगा, या फिर वो unsound mind का person है, तो इसीलिए उसका consent valid consent नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसेंट विक्टिम ना देकर गार्जियन दे रहे हैं और एनी पर्सन इन लॉफुल चार्ज। आई होप इट इज क्लियर। आई होप यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सेक्शन 88। अब देखो सेक्शन 88 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 88 सेज नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, सो यू आर डूइंग इट इन गुड फेथ, you are doing it for the benefit of the person, which means for the benefit of the victim, and he is under 12 years of age or he is unsound mind, or by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person। तो अगर आप कुछ करते भी हो, चूंकि since you are doing it for the benefit and in good faith and you have obtained the consent by the guardian or the other person in lawful charge, so here your offense will be condoned। क्लियर है ना ये? अब देखो आगे इसको समझते हैं। इसमें भी प्रोवाइजोज है बहुत सारे। लास्ट में देखो, आई एम टेलिंग यू, लास्ट में वील डू अ फुल प्रूफ कंपैरिजन बिटवीन ऑल द सेक्शंस एंड आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अब हम ये देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन यही है कि आपने कंसेंट में भी किया है, फिर भी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए टू कॉज डेथ, और इंटेंशन नहीं होनी चाहिए फॉर अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, बिकॉज इंटेंशन निगेट्स गुड फेथ। तो ये इंटेंशन है तो यू विल बी लायबल। सेकेंड इज आपके पास नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन नॉलेज है भी, फिर भी यू आर डूइंग टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम डेथ, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस डिजीज और इन्फॉर्मिटी, तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। अब आप बोलोगे ये हमने पहले भी पढ़ा सेक्शन 92 में, है ना, ये जो आप पढ़ रहे हो। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों ही सेक्शंस के प्रोवाइजोस, बट देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस जो बाद में हम कंपैरिजन चार्ट में देखेंगे। फिर थर्ड भी वही है और फोर्थ भी वही है, तो हम इसको बाद में कंपैरिजन चार्ट में तो देखेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन सेज दैट ए इन गुड फेथ फॉर चाइल्ड्स बेनिफिट, सो ही इज अ चाइल्ड, तो आप समझ लो कि ये 12 ईयर से कम का होगा, तो उसके बेनिफिट के लिए ये क्या करता है, बिना चाइल्ड की कंसेंट के हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय ए सर्जन knowing it to be likely that the operation will cause the child's death, है ना। तो जब उसका ऑपरेशन करा रहा है बिना चाइल्ड की कंसेंट के करा रहा है फॉर हिज चाइल्ड, सो ऑब्वियसली गार्जियन है ना, तो गार्जियन अपने बच्चे की स्टोन हटवाने के लिए he is agreeing for the surgery, so guardian is not taking the consent of the child and the surgeon is performing it, क्योंकि कंसेंट दे दिया गार्जियन ने। सो हियर ही इज नॉट इंटेंडिंग टू कॉज अ चाइल्ड्स डेथ, सो अगर चाइल्ड को थोड़ा हार्म हो भी जाता है, कोई हार्म हो भी जाता है, स्टिल द सर्जन एंड द गार्जियन वोंट बी हेल्ड लायबल, दे विल बी गिवन द प्रोटेक्शन। अब आगे देखते हैं। देखो, इफ द चाइल्ड इज लेस देन 12 years ना एंड गोज टू द स्कूल, देन इट इज इम्प्लाइड दैट द गार्जियन हैज गिवन द कंसेंट। तो अगर 12 ईयर से कम है तो हम मान के चलेंगे कि गार्जियन की इम्प्लाइड कंसेंट है। फॉर स्लाइट पनिशमेंट्स, आप स्कूल जाते होगे, टीचर्स ने आपको थोड़ा पनिश किया होगा, बाहर जाओ, है ना, खड़े रहो,
So these sort of punishments, obviously, which is justified under the Juvenile Justice Act. So उस टाइप का पनिशमेंट दिया है, तो यू कैन नॉट से दैट नो आई एम नॉट कंसेंटिंग, बिकॉज आप 12 साल से नीचे के हो, तो इट विल बी अज्यूम दैट योर गार्जियंस हैव अग्रीड फॉर द हैज गिवन द इम्प्लाइड कंसेंट. और अगर आप 12 साल से ऊपर हो तो भी आप पनिशमेंट लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू योर सेल्फ हैज़ गिवन द इम्प्लाइड कंसेंट, है ना, फॉर स्लाइट अमाउंट ऑफ पनिशमेंट्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट योर बिहेवियर. अब देखो यही बात ना एम नाटेसान वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में, इट वाज हेल्ड दैट कॉर्पोरल पनिशमेंट्स गिवन टू अ स्टूडेंट बाय अ स्कूल टीचर विद अ व्यू टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड टू मेक हिम एडर टू गुड क्वालिटीज़, वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी 88 और 89 में. 88 में प्रोटेक्शन मिल जाएगी व्हेन द विक्टिम दैट इज द चाइल्ड वो खुद ही कंसेंट दे रहा है, और 89 में प्रोटेक्शन मिल जाएगी व्हेन द गार्जियन implied consent of guardian is there. But the consent is not for an immoderate corporal punishment. Immoderate नहीं होना चाहिए. अब immoderate का एक केस लॉ से समझ लो. The case law is C.R. Karyappa versus State of Karnataka. So what happened in this case was there was a school teacher and he gave beating to a second class child with a stick. Stick उसके आँख में लग गई and his eyes got impaired. 2 बार सर्जरी करानी पड़ी and despite the double surgeries his eyes could not be cured. So the teacher was held liable for the offence of voluntary causing grievous hurt under section 325 of IPC. And the teacher could not get the defense of this section. Why? Because beating was such that he could not prove good faith. क्या आपको इस तरीके से मारना है कि उसकी आंखों में लग जाए, इतना मारना है आपको? नो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. सो देयर वाज नो गुड फेथ ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर. ऑल्सो द गार्जियन कुड नेवर हैव कंसेंटेड टू सच काइंड ऑफ इंजरी. तो यहाँ पे द टीचर गॉट द पनिशमेंट, उससे बेनिफिट नहीं मिला, एक्सेप्शन का है, एंड द कोर्ट इम्पोज्ड अ पनिशमेंट ऑफ आई थिंक 50,000 रुपीज. ये समझ में आ गया ना? अब नाउ लेट्स सी अ कंपैरिजन चार्ट जो मैं बोल रही थी कि इन व्हाट ऑल केसेस आपको डिफेंस नहीं मिलेगा. सेक्शन 87 विच इज स्पेशली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. सो वहाँ पे अगर आप इंटेंशनली कॉज करते हो डेथ या इंटेंशनली कॉज करते हो ग्रीवियस हर्ट, सो यू विल नॉट गेट द एक्सेप्शन. या फिर आप नॉलेज से करते हो ऑफ लाइकलीहुड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो आपको 87 में बेनिफिट नहीं मिलेगा. Section 88 only has one exception, which is intentional causing of death. Okay? Intentionally अगर आप death cause करते हो, भले ही victim ने consent दिया है, victim itself has consented, फिर भी you won't get the benefit. Section 89 में जहाँ पर guardian or any other person in lawful charge is giving the consent, and in section 92 which covers situation जहाँ पे कोई कंसेंट नहीं दी गई है, फिर भी सिंस देयर वाज एन एमिनेंट सिचुएशन यू वर गेटिंग द एक्सेप्शंस. अब इनमें जो प्रोवाइजोज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. आइए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है. इन दोनों में ही अगर आप इंटेंशनली डेथ कॉज कर रहे हो यू वोंट बी गिवन द बेनिफिट, और या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो डेथ कॉज करने का, देन ऑल्सो यू वोंट बी गिवन द बेनिफिट. या फिर आप नॉलेज से कर रहे हो ऑफ लाइकलीहुड ऑफ कॉजिंग डेथ, आपको नॉलेज है कि आपकी आग डेथ कॉज कर देगी, तो भी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. बट इन दोनों ही सेक्शंस में भले ही आपको नॉलेज है, यू आर अवेयर दैट योर एक्ट माइट कॉज डेथ, बट सिंस यू आर डूइंग इट टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम डेथ, ग्रीवियस डिजीज, ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस इन्फॉर्मिटी, तो यहाँ पे लार्जर गुड के लिए आप कर रहे हो, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगी. द नेक्स्ट इज in cases of abatement. So if the main accused, he cannot get the benefit of section 89 or 92, then the person who is abetting him to do that act, जो दुष्प्रेरण कर रहा है कि तुम ये काम करो, उसे भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. So ये चारों तो सेम है, but there is a difference here. सेक्शन 89 में voluntarily causing grievous hurt है या अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा.
लेकिन सेक्शन 92 में वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ना होकर हियर इट इज ओनली हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट. सो यहाँ पर ना ओनली हर्ट इज कवर्ड, जबकि यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट इज कवर्ड. तो फिर आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्ट कर रहे हो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम डेथ, grievous hurt, grievous disease or grievous infirmity, then you will get the exception. Similarly, in section 92 also, you are voluntarily causing hurt in order to prevent the person from death or hurt, so you will be given the exception. अब यहाँ पे कुछ अदर एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं. ये तो मैंने प्रोवाइजोस के थ्रू बताया कि what all can be the exception. Another exception is given in section 91. तो अब हम देखते हैं ना सेक्शन 91 क्या है. सेक्शन 91 के बिहाइंड आइडिया था दैट इफ आई एज एन इंडिविजुअल हैव गॉट नो राइट टू टेक हार्म टू माई सेल्फ, सॉरी, इसका कहने का बेसिकली मतलब ये था कि अगर मैं एज एन इंडिविजुअल मेरे पास राइट है कि मैं अपने आप को हार्म पहुंचा सकती हूँ. So I can take harm on myself, but I cannot take harm or the risk of harm for another persons. Okay? अब ये पढ़ लेते हैं. यहाँ पे लिखा है exclusion of acts which are offenses independently of harm cause. The exceptions in section 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offenses independently. तो जो इंडिपेंडेंटली खुद ही एक ऑफेंस है, तो इवन दो यू गिव द कंसेंट, नो 87, 88, 89 में यू आर गिविंग द कंसेंट, बट स्टिल द पर्सन अक्यूज विल बी लायबल. व्हाई? बिकॉज ये खुद में ही एक ऑफेंस है इंडिपेंडेंटली, तो यू कैन नॉट कंसेंट फॉर दैट. ओके, हम इसको आगे समझेंगे एक बढ़िया इलस्ट्रेशन से. सो यू नो, इलस्ट्रेशन देखने से पहले अगर मैं आपको समझा दूं दैट सपोज देयर इज अ वुमन एंड शी अग्रीज विथ एक्स दैट आई वांट टू डू फेंसिंग विथ यू, लेट्स हैव अ गेम ऑफ फेंसिंग टुगेदर. ओके, सो यहाँ पे एक्स जो पर्सन है ना, ही नोज दैट डब्ल्यू इज प्रेग्नेंट. सो वो प्रेग्नेंट है, वो देख पा रहा है. सो अगर नॉर्मल हार्म के लिए द वुमेन इज अग्री और वो जो पर्सन एक्स है अगर उसको थोड़ी मोड़ी चोट पहुंचा देता है, तो सिंस इट इज अ स्पोर्ट, सो यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 87. वहां पे आपको बेनिफिट मिल सकता है. बट सपोजिंगली वाइल प्लेइंग द गेम वो उसको इतना हर्ट कॉज कर देता है कि मिस कैरेज हो जाता है वुमेन का. सो वुमेन सफर्स अ मिस कैरेज एंड देन ही इज टेकिंग अ डिफेंस. X is taking a defense that W herself agreed for the harm. So the question here is that whether it can be said that W consented for miscarriage. हम ये बोल सकते हैं कि W ने मिसकैरेज के लिए कंसेंट दिया था. तो इसके लिए ना हमें मिसकैरेज के लॉज को एग्जामिन करना पड़ेगा, विच इज फ्रॉम सेक्शन 312 ऑनवर्ड्स. सो इफ यू स्टडी 312, नो 312 इज सेइंग दैट द वुमेन वो अग्री नहीं कर सकती मिसकैरेज के लिए. समझ रहे हो आप? यहाँ पे वुमेन कैन नॉट अग्री फॉर द मिसकैरेज. एंड व्हाई शी कैन नॉट अग्री फॉर द मिसकैरेज? Because miscarriage is an offense not only against the woman but also against the child. So she cannot give consent for somebody else, right? तो यहाँ पे किसी और के लिए consent नहीं दे सकती. So अगर woman gave consent to someone to hit me, okay, woman is saying that you can hit me. For that much hurt it is okay. But if in that process suppose miscarriage happens, so that will be punishable, because 312 जब आप पढ़ोगे it is expressly saying that women cannot give consent only for miscarriage. women दे नहीं सकती consent.
तो अगर उसने कंसेंट दे दिया है, सपोज मान लो, फिर भी उसकी कंसेंट मानी नहीं जाएगी, है ना, एंड द पर्सन विल बी लायबल फॉर मिसकैरेज। एंड द वुमेन किस चीज के लिए लायबल हो जाएगी? अगर सपोज वुमेन ने कंसेंट दे भी दिया था तो वुमेन किस चीज के लिए लायबल हो जाएगी? वुमेन विल बी लायबल फॉर अबेटमेंट टू मिसकैरेज, है ना। आइए देख लेते हैं इसको। इट इज सेइंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल। ये आप 312 ऑनवर्ड्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो इट इज पनिशेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द वुमेन हैज गिवन कंसेंट और नॉट। सो द कंसेंट इन केसेस ऑफ मिसकैरेज इज इमटेरियल। दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता, द पर्सन विल बी लायबल। सो इफ द pregnant woman causes her own miscarriage, then she will also be punishable. And therefore, if a pregnant woman gives consent for any permissible harm to herself और उस process में miscarriage हो जाता है, then the consent cannot be deemed to have been a consent, valid consent नहीं मानी जाएगी, and both the persons will be held liable, especially for miscarriage, and the woman will be held liable for abetment to miscarriage. So this was it. We'll see you in another video. Now thanks.